Physics of power plant. So the power plant convert thermal energy, heat energy into electrical energy. This electrical energy is transmitted by a series of wires to our homes and commercial houses. Based on the nature of fuel used in power plants, the power plants can be classified into two types: thermal power plants and nuclear power plants. तो पहले थर्मल पावर प्लांट के बारे में। तो थर्मल पावर प्लांट्स एम्प्लॉय डिफरेंट फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल और ऑयल और नेचुरल गैस और बायोमास। बायोमास इज वेस्ट प्लांट मटेरियल as a source of heat energy. The usage of different type of fossil fuels resulted in varying amount of air pollution and emission of greenhouse gases such as carbon dioxide. So, the nuclear power plant employ fissionable material such as uranium isotope. Full stop. The nuclei of 92 uranium-235 splits to produce enormous amount of heat energy by chain reaction. ये न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में थोड़ा सा बताया आपने। Now next paragraph से आप लिखिए, the heat produced by combustion of fuel or splitting of nuclei boils water in a boiler unit to produce high superheated steam at high pressure. The superheated steam rotates the blades of turbine. The turbine is connected to a coil of wire. As turbine rotates, the coil rotates within a circular arrangement of magnets. The magnetic flux linked with the coil changes and an alternating induced EMF is generated in the coil. Since the circuit is closed, the alternating induced EMF generates an alternating current. So faster is the rotation of blades of turbine, faster is the rotation of coil. Hence, higher is the time rate of change of magnetic flux, resulting in more alternating current. ये हम बता रहे हैं पावर कैसे बढ़ सकती है। ओवरऑल आपको बॉयलर की कैपेसिटी बढ़ानी होगी। नेक्स्ट ये लिखो, so in this way power plant generates greater power. The steam is reconverted into water for the next cycle. After passing through the turbine, the superheated steam is condensed into water in a condenser. The cooling water is mixed from nearby water body such as river or pond. It brings temperature of water 15 degree to 20 degree centigrade higher than the normal water. At this temperature, water is returned to water body for reusage in boiler. ये वहां पे होता है काम जहां पर रिवर और पॉन्ड जो है आसपास होते हैं यूनिट के, वहां तो आप इस मेथड को यूज कर लेते हो, लेकिन जहां नहीं है वहां पर कूलिंग टावर की सहायता ली जाती है। सो द अल्टरनेट मेथड ऑफ कूलिंग वाटर इज थ्रू कूलिंग टावर. वाटर इज मेड टू फॉल फ्रॉम टॉल कूलिंग टावर. The evaporation of water falling through the tower provide the cooling effect.
सर ये मतलब पानी ऊपर कैसे जा रहा है? क्या? कूलिंग टावर का बताओ सर एक बार कूलिंग टावर आपने फैक्ट्री है, प्रोसेस। फैक्ट्रियों में क्या होता है, ऊंचे ऊंचे टावर्स होते हैं, उसमें पानी निकल रहा होता है बाहर को। छेद होते हैं टावर के ऊपर, सबसे ऊपर टॉप पे छेद से होते हैं, उन छेदों में से पानी सा निकल रहा होता है, फुहारा जिसे कहते हैं। ठीक है, और वो होके नीचे की तरफ आता है पानी। तो वो जो पानी निकलता है ऊपर, वो बहुत गर्म होता है, हॉट। बट जब वो नीचे आता है तो नीचे आने में इवेपोरेशन होता है। तो इवेपोरेशन आपको पता है, जब भी पानी का इवेपोरेशन होगा कूलिंग इफेक्ट होता है। जैसे कि आपको पसीना आ रहा है, तो जब आपकी बॉडी से पानी उड़ता है तो आपको ठंडक महसूस होती है। तो इवेपोरेशन में हमेशा जो है वो आपकी हीट एब्जॉर्ब होने के कारण आपको कूलिंग इफेक्ट मिलता है, राइट। तो जब ये नीचे आ रहा है पानी, तो इवेपोरेशन से पानी अपने आप ठंडा होता है, तो नीचे आके ये थोड़ा ठंडा हो जाता है। इसके बाद एक साइकिल फिर से रिपीट की जाती है, इसको एक बार फिर से जो ऊपर है उस तरफ भेजा जा रहा है, ये फिर से नीचे आएगा, नीचे आके फिर इसका तापमान थोड़ा गिरेगा। तो जब ये एक दो साइकिल हो जाती है तो इसका टेम्परेचर इतना हो जाता है कि इसे वापस जो है फिर बॉयलर यूनिट में भेज दिया जाता है। फिर ये बॉयलर यूनिट में नॉर्मल टेम्परेचर पे चला जाता है। इसमें हमें बाहर से कूलिंग वाटर डालने की जरूरत नहीं होती है, इसमें हम टावर से ठंडा कर रहे हैं ऊपर से नीचे गिरा के। ये फैक्ट्रियों में हमारे यहाँ ज़्यादातर यूज होता है। हरियाणा साइड जाओ, वहाँ भी जो प्लाईवुड वगैरह की फैक्ट्रियाँ हैं उनमें ये टावर्स लगे हुए हैं, क्योंकि पानी की जो वाटर बॉडीज हैं वो हमारे यहाँ एकदम फैक्ट्रियों के आसपास नहीं है। क्योंकि ये वहाँ हैं जैसे कोस्टल एरियाज हैं, वहाँ तो पानी की वाटर बॉडी एकदम मिल जाती हैं। बट जहाँ कोस्टल एरिया नहीं है, जैसे हम लोगों के हैं लैंड लॉक्ड एरियाज, तो वहाँ पे जो है हमें कूलिंग टावर की सहायता से ही कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना पड़ता है पानी को ठंडा करने के लिए। तो ये दूसरा मेथड है। ठीक है सर। तो आप जो है इसमें तो तीन आप पैराग्राफ, सबसे पहले आप पावर प्लांट के बारे में डिस्क्राइब करोगे, उसके बाद उसके दो प्रकार बताओगे उसके फ्यूल के आधार पे। उसके बाद उन दोनों को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, थर्मल पावर प्लांट क्या होता है और न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है फ्यूल के आधार पे। उसके बाद एक पैराग्राफ बनाओ कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है। तो इसमें आपको पूरा प्रोसेस लिखना होगा कि कंबस्शन से बॉयलर यूनिट में वाटर जो है बॉयल होता है, फिर स्टीम बनती है, फिर स्टीम टरबाइन को रोटेट करती है, कॉयल घूमता है, फ्लक्स चेंज होता है मैग्नेट्स के बीच में, और ईएमएफ बन के और करंट बन जाता है। फिर आप थोड़ा सा ये भी लिख दो कि पावर कैसे बढ़ाई जा सकती है। ठीक है। फिर आखिरी पैराग्राफ में ये जो लास्ट आपके सामने इस वक्त दिख रहा है, इसमें आपको ये लिखना है कि स्टीम को वाटर में कन्वर्ट कैसे किया जाता है और किस तरीके से उस वाटर को दोबारा से बॉयलर यूनिट में भेजा जाता है, व्हाट इज दैट प्रोसेस। क्योंकि वो जो वाटर है, जो कंडेंसर में जब स्टीम कंडेंस होती है वाटर बनती है, वो बहुत बहुत गर्म होता है, क्योंकि स्टीम बहुत गर्म है। तो उसको आप एकदम से ना तो बॉयलर में भेज सकते हो, ना आप उसे लार्ज रिजर्वर है जैसे कोई रिवर है, पॉन्ड है, उनमें भी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो वो जल जंतु को नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आपको पहले उसे ठंडा करना है। ठंडे के दो तरीके हैं, या तो बाहर से ठंडा पानी मिला लो, ठंडे पानी मिलाती 15 से 20 डिग्री तापमान तक जब वो हो जाए आपके नॉर्मल वाटर से, तब आप उसे उसमें छोड़ दो वापिस, उसमें पॉन्ड में या रिवर में, क्योंकि 15 से 20 डिग्री तक सहन कर लेते हैं जो जीव जंतु होते हैं, और फिर दोबारा से यूज करो। एक मेथड ये तो ट्रेडिशनल मेथड है। और एक मेथड है कि उसी को आपको बाहर से ठंडा पानी डालने की जरूरत नहीं है, जो पानी आपका गर्म है उसे कूलिंग टावर के टॉप पे ले जाके नीचे फेंको, तो वो इवेपोरेट होके ठंडा होगा। बार बार 2-4 साइकिलें चलाओ, साइकिल चला करके वो अपने आप ठंडा हो जाएगा, ठंडे को बॉयलर यूनिट में भेज दो। ये हमारे यहाँ फॉलो किया जाता है। सो ये जो है ये हमारा हो गया।